ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਈਟੀਟੀ ਸੈਕੰਡ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਲਿਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ 10th ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 10th ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਸ਼ਬਦ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹਰ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਰ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ, ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਨੋਟਸਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, 2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ MCQ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ MCQ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦੀ ਆ, ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਾਂ ਬਿਹਾਰੀ ਹਿੰਦੀ ਆ, ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਬੁੰਦੇਲੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਨਸਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਇਜ਼ ਫਿਰ ਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਕੁਇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੈਸਟ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ MCQ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ MCQ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। MCQ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਕ ਅਰੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੁੱਕ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ठीक लगता लोड है कर लेना। ठीक है जी। भाषा और लिपि, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। ये सभी को ही पता है। ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन सा? मौखिक और लिखित। जो मौखिक भाषा होती है, ये अब दोनों पॉइंट जो मैंने आगे करने हैं वो दोनों याद करने वाले हैं। इनको नोट डाउन करना है अपनी माइंड में भी और अपनी कॉपीज़ पर भी। ठीक है, क्या है मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई? क्या है? ध्वनि। ठीक है, ध्वनि जो है वो मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई है। बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन कहाँ से भी आए, एग्जामिनर कहाँ से भी क्वेश्चन पाए, हमारा फ़र्ज है कि हम अपने सिलेबस का एक एक टॉपिक जो है वो क्लियर कर डालें। बस आगे बराबर रखा। ठीक है, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई क्या है? वर्ण। क्या है? वर्ण। इसको मतलब इसकी जगह अक्षर भी लिखा हो सकता है, तब भी यही आएगा। ठीक है, मतलब वर्ण अक्षर एक ही बात है। ठीक है, तो ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमने नोट डाउन कर लेने हैं। आगे है भाई उपभाषा और बोली। ये दोनों पॉइंट सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए है, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। भाषा के सामान्य रूप को उपभाषा कहते हैं। एक उपभाषा के क्षेत्र में कई बोलियां हो सकती हैं। ठीक है, एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं। ठीक है, और ये भाषा का सामान्य रूप है, मतलब किसी विशेष क्षेत्र में भाषा का जो उपभाषा का रूप है वो वैसा ही रहता है। बोलियां बदल जाती हैं, इसमें से बोलियां निकल पड़ती हैं। ठीक है, तो जब हम 10-15 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं तो किसी भी उपभाषा का जो स्टाइल होता है बोलने का वो बदल जाता है, मतलब डिफरेंट बोलियाँ जड़ियाँ निकल उसमें से निकल आती हैं। ठीक है, आगे है भाई बोली क्या होती है? किसी छोटे से क्षेत्र में किसी भाषा का बोले जाने वाला रूप, स्थानीय रूप। ठीक है, स्थानीय रूप है। ये सामान्य रूप है जो कभी बदलता नहीं है, तो ये जो है स्थानीय रूप है। ठीक है, बस ये समझने वाला था, इसमें कुछ भी नोट नहीं करना है हमने। आगे अभी हिंदी की कितनी प्रमुख उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। कितनी है? 5। हाँ, तो इसकी देखो कौन कौन सी। पहली है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। ये 5 आपने अच्छे तरीके से दिमाग में डाल लेने हैं। आपने दिमाग में किसी भी तरह से घुसेड़ लो बस। इसके आगे देखो, इसकी आगे हम इनकी जो भी बोलियां निकलती हैं ना वो करेंगे, क्योंकि हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब आपको कंसेप्ट जो है सिस्टेमेटिकली वे से समझ आएगा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की देखो बोलियां कौन सी है? खड़ी बोली या कौरवी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, बांगरू।
ठीक है। ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां आती हैं। ये भी पता होना चाहिए कि ये खड़ी बोली है या किस किस उपभाषा के साथ संबंधित है। ये है पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की याद कर लेना। जब आप बार बार अपने बनाए हुए नोट्स को पढ़ेंगे ना, मेरे कहने का मतलब है जैसे 2 दिन आज पढ़ लिया, 2 दिन छोड़ दिए, फिर आगे पढ़ लिया, ऐसे करेंगे ना, अभी पेपर में टाइम है, तो आपको ये रट जाएगा, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। दिल्ली और मेरठ, दिल्ली, मेरठ, देहरादून, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में ये खड़ी बोली कौरवी बोली जाती है, ठीक है। हिंदी की कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली और कौरवी। दिल्ली हमारी भारत की राजधानी है, इससे हम याद रख सकते हैं कि यहाँ कौन सी हिंदी बोली जाती है, ठीक है। मेरठ हमारा विद्रोह शुरू हुआ था आज़ादी की पहली लड़ाई का, तो इससे भी हम याद रख सकते हैं। देहरादून हमारी धून घाटी है, तो इससे भी हम याद रख, ऐसे हम आपके दिमाग में जो घटनाएं याद रहती है ना, उसके साथ इसको कनेक्ट करके याद करो बस। आगे है भाई ब्रजभाषा, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, ठीक है। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, यहाँ बोली जाती है ब्रजभाषा, ठीक है। आगे भी यूपी के कुछ प्रदेश हैं, यहाँ बुंदेली बोली जाती है, जैसे जालौन, झांसी, मध्य प्रदेश, भोपाल, ग्वालियर में यहाँ क्या बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है, ठीक है। आप लोगों ने ये याद रख लेना है, ठीक है। आगे देखो, ये मथुरा याद कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के साथ संबंधित है। आगरा हमारा ताजमहल है, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि वहाँ के लोग कौन सी बोली बोलते हैं, ऐसे कुछ करके, ठीक है। आगे अभी कनौज जो है यूपी में, वहाँ कनौजी बोली जाती है, ये तो याद रह ही जाएगा। हरियाणवी बांगरू में जो रोहतक है, करनाल, नाभा, यहाँ क्या बोला यहाँ कौन सी बोली हिंदी की होती है? कौन सी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हरियाणवी बांगरू। आगे अभी दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही बोली बोली जाती है, पटियाला के पूर्वी भागों में भी। आगे अभी पूर्वी हिंदी के भी आगे 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये याद रखना है, कहीं खड़ी बोली को इसमें ना डाल देना, ठीक है ना। ये याद रखना कि अवधी जो है और बघेली, छत्तीसगढ़ी, इन तीनों को ऐसे याद कर लेना। ये मतलब ऐसे सोचना कि ये एक परिवार है, इनके ये बच्चे हैं, ठीक है। बस ऐसे कुछ करके याद कर लेना बस। जैसे हम बच्चों को समझाते हैं ना, वैसे ही सोचो कि हम भी बच्चे ही बन जाते हैं तब, स्टूडेंट, ओके। अवधी में यूपी के जो लखनऊ है, रायबरेली, सीतापुर है, फैज़ाबाद, कानपुर, जौनपुर में अवधी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में रीवा, दमोह, मंडला, जबलपुर तथा बालाघाट में बघेली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी मध्य प्रदेश के रायपुर में, रामपुर में, बिलासपुर में बोली जाती है। ये याद कर लेना, ठीक है। ऐसे इनको पढ़ेंगे बार बार, एक बार पढ़ने से या एक बार वीडियो देखने से ये नहीं आएगा, इसको बार बार आपने रिपीट करना है, आपको पढ़ना है, तो इसे याद कर लेना, ठीक है। आगे भी राजस्थानी हिंदी, जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी, भीली, ये राजस्थानी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं, ठीक है। जयपुर में, अजमेर में, किशनगढ़ राजस्थान में ये जयपुरी बोली जाती है। जयपुर से जयपुरी तो याद रह ही जाएगा। इंदौर में और भोपाल में, देखो भोपाल में हमने पीछे भी की थी ना, तो ये भोपाल के कुछ एरियाज में मालवी भी बोली जाती है, ठीक है, राजस्थानी हिंदी, ठीक है। और मारवाड़ी, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, मावेड़, ठीक है ना, यहाँ क्या बोली जाती है? यहाँ मारवाड़ी बोली जाती है। आगे राजस्थान, गुजरात की और जो मध्य प्रदेश, एमपी का जो बॉर्डर एरिया हुआ है, वहाँ भीली हिंदी बोली जाती है, ठीक है। ऐसे इनको पढ़ के आप याद करोगे तो हो जाएगा याद, ठीक है। हम बच्चों को करवाते हैं, तो अब खुद याद करना है इन्हें। आगे अभी पहाड़ी हिंदी की आगे 2 बोलियां हैं, पश्चिमी पहाड़ी और मध्यवर्ती पहाड़ी। शिमला, मंडी, चंबा तथा बॉर्डर एरियाज जो है ना, वो वहाँ पर कौन सी बोली जाती है हिंदी की बोली? पश्चिमी पहाड़ी, ठीक है। मध्यवर्ती पहाड़ी, गढ़वाल, कुमाऊं, ठीक है, वहाँ बोली जाती है मध्यवर्ती पहाड़ी। आगे है बिहारी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, जैसे हम भोजपुरी फिल्मों से याद कर लेना, मगही और मैथिली, ठीक है ना। मैथिली जो है वो बिहारी हिंदी की बोली है। अब देखो गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ और गोरखपुर याद कर लेना, ठीक है। मतलब जैसे हम गोरखनाथ का किस्सा करते हैं ना पंजाबी में, वैसे ही कुछ ऐसे बनू कर याद कर लेना, ठीक है। तो भोजपुरी यहाँ की जाती है। मगही जो है वो पटना, गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म स्थान है ये, तो यहाँ आप सोचो कि मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सी हिंदी बोली जाती है? मगही बोली जाती है। आगे दरभंगा, मुजफ्फरपुर और मुंगेर में क्या बोला जाता है? मथेली बोली जाती है, ठीक है। ऐसे इसको वीडियो को रोककर आपने नोट कर लेना है अपनी कॉपीज़ पर, इस नोट्स को बना कर रखो, ठीक है। ऐसे अगर आप सिस्टमेटिकली वे से याद करेंगे, अपने नोट्स को ऐसे बना कर रखेंगे ना, ताकि आपके
पेपर देने के बाद आपसे कोई और मांग ले तो आप उसको दें, उसकी हेल्प करें। अगर आपने ऐसे खिचड़ी बना रखी होगी तो फिर आप क्या देंगे किसी की मदद के लिए, ठीक है ना। सो ऐसे